हेलो रूपा जी। Yeah, okay. So, Hello, hello everyone. Hello. all right, thank you everybody for joining in today. And today we have Priyanka with us, who is a very brave fighter, and she's going to share her story. Um, Feel free to ask questions to her, and it's a very cordial yeah, meeting. We would be just interacting on. We all are somehow blessed with cancer, so we'll just talk to her and know what has she done differently that can help us or others to go through this journey. And yeah, Priyanka, welcome and thank you so much for coming forward and telling your story to us and helping others. Please let us know about your story, like how it started and how did you fight it, and whatever you like to share with us. First of all, thank you so much for joining in, and thank you, Mehul sir, for giving me the opportunity to speak about it. And it's a great platform which you guys are handling. And I have seen people coming up with queries, and how Amit sir and you both are, responding to people, helping them out with what best you can, advise them. So at times I have also seen, I mean, I have gone through the situation where, you are completely clueless. You have no idea what is happening, what to do, what not to do. And specifically at that, when I was undergoing this treatment, that time I could not join this platform. By the time I was almost halfway done, by that time I got to know about this Facebook page about the Indian warriors. So, first of all, if I start from the beginning, I was diagnosed in August 2020 during first COVID wave. So everywhere it was COVID, and come very much scared how to go to hospital and whatnot. About my family background, I'm a mother of two kids. My elder one is 8.5, and my younger one is 3.5 now. So, to start with, I'm based out of Gurgaon. I have a corporate experience. I've worked in corporates and for 14 years. Left it when I was expecting my second child. I decided to give time to my family. And when I weaned him, after that, I realized a lump in my one of my breast, and I felt probably it must be the milk duct blockage, and I ignored for a month. So within that month, I realized that it was growing way too fast. It's not a normal lump. So I consulted my family doctor, and we were in my our hometown, and I couldn't go and see a proper gynecologist or somebody. So I consulted my family doctor. So she gave me a medicine and told me to take this medicine and see her after 3 days. And just again, after 3 days, there was no change. She was expecting that it might get dissolved with those medicines, but it did not. So then she examined me and told me to see a surgeon. By that time, she was sure, but I had no idea what it is. When I went to see a surgeon, he was like, you need to get the test done right away. I was like, okay. I got my ultrasound done because before that, in fact, my family doctor herself sent me to one of the doctors to get a ultrasound done. But that radiologist did my ultrasound and told me she cannot publish the reports. And the reason she gave me that said, it is not very clear and I cannot give you any report. Maybe she was not too sure about it and she refunded my money back. And I felt really weird because in Gurgaon, nothing like this happens ever. If you're going to a hospital, भैया रिपोर्ट मिलेगी चाहे जैसा भी होगा वो करके दे देंगे आपको. I hope you guys are okay if I speak in Hindi in between. या प्लीज डू दैट। आप हिंदी में हाँ, बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब because there must be people around. No? करेक्ट। So उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड फिर मैं सर्जन के पास गई, सर्जन को दिखाया, उन्होंने मेरे को एग्जामिन किया और वो बोले मुझे कि आप अभी के अभी इस जगह जाइए और यहाँ पर जाकर आप अपना अल्ट्रासाउंड करा कर आइए.
सो आई रियली वंडर्ड कि एक बार ऑलरेडी पहले कराया और उन्होंने मना कर दिया, अब दूसरी जगह करा रहे हैं। सो आई टोल्ड दैट सर्जन दिस इज व्हाट हैज हैपेंड कि मैं पहले कराने गई थी और उन्होंने मुझे मना कर दिया रिपोर्ट के लिए। So something triggered him as well. So to cut it short, I went to that specific doctor. I went alone. In fact, my mommy was there with me because it was COVID and I did not want my husband to come along with me because of exposure in the hospitals. So my mommy was with me. I went to that doctor, got that ultrasound done. After 40 minutes, he gave me the reports. I took the reports. I went back to the surgeon. It was his lunchtime, but he was waiting for the reports. Meanwhile, he had already spoken to the radiologist who had done my ultrasound. So he told me to get the FNAC done right away. So again, on the very same day, I was like, all right. I had no idea what is FNAC. And honestly, I did not even Google it. I don't know why I did, but I did not. So I went, stood there, stayed there for a good 2 hours. There was a waiting for FNAC for a doctor to come and do the FNAC. So got my FNAC done, came back home, drove back home. I was driving, so I went with my mommy, drove down. So came back home, and he told me, hey, give me the reports by 7:30. So I said, okay, in case if I'll be able to come and I'll come and pick it. Otherwise, I'll take it in the morning because doctor told me to see him in the morning next day. So around 8 o'clock, I called that lab and asked him, is my reports ready? So I can ask my husband to pick it up. So he said, okay, yeah, it is ready. I said, can you click the photo and send me over WhatsApp? So he was like, ma'am, okay, I will do that. It took him 45 minutes. He did not. He did not send me the reports. तो मैंने दोबारा उनको फ़ोन किया। आई सेड आपने मुझे बोला कि आप मुझे रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, लेकिन आपने मुझे रिपोर्ट्स नहीं भेजे। तो ही गेव मी द वेरी वियर्ड रीज़न सेइंग कि जो हमारे लैब के हेड हैं, वो हैं नहीं और आपकी रिपोर्ट पे साइन नहीं हुआ है, तो मैं आपको व्हाट्सएप नहीं कर सकता। आई सेड आप मुझे व्हाट्सएप मेरी जिससे मुझे पता चल जाए मेरी रिपोर्ट्स क्या हैं, इसलिए आपसे मैं व्हाट्सएप माँग रही हूँ, मैं वो अपनी डॉक्टर से शेयर नहीं करूँगी। तो उसने मुझे मना कर दिया। तो अगले दिन सुबह my daughter had her class. My son was 1.5 that time. तो घर पर उनको छोड़कर सब क्लास कनेक्ट कराकर मैंने अपनी रिपोर्ट्स कलेक्ट किए और मैं डॉक्टर के पास चली गई। बट उस टाइम तक डॉक्टर को सारी रिपोर्ट्स और सारी बैकग्राउंड पता चल चुका था बिकॉज़ इट्स अ स्मॉल टाउन और वहाँ पर सारे डॉक्टर्स एक-दूसरे से बात करके डिस्कस करते हैं। कोई भी केस अगर जहाँ पर उनको कहीं पर भी कुछ डाउट आता है। रीज़न बिकॉज़ मेरे जो अल्ट्रासाउंड आया था, अल्ट्रासाउंड में उन्होंने एक कैलकुलस करके लिखा था कि बट इट वाज़ विद द क्वेश्चन मार्क बिकॉज़ ही वाज़ अंडर द इंप्रेशन कि ये शायद मिल्क डक्ट ब्लॉकेज ही है, जो लंप बन गया है। बट अगेन इट वाज़ नॉट श्योर इसलिए हमने एफएनएसी कराया और जो एफएनएसी हुआ उसमें मैलिग्नेंसी सेल्स आ गए थे। इट शोड दैट इट इज़ मैलिग्नेंट। तो उसी दिन रात को जिसने मेरा एफएनएसी किया और जिसने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और जो सर्जन था, उन तीनों ने कॉन्फ्रेंस कॉल करी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अल्ट्रासाउंड में नहीं आया और इसमें आ गया। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत लंबा उनका डिस्कशन रहा। मीनवाइल मैं पहुंची डॉक्टर के पास, मैं अकेली गई, मैं किसी को साथ नहीं लेके गई। तो डॉक्टर वाज़ अवेयर ऑफ माय रिपोर्ट्स, तो मैंने उनको रिपोर्ट दिखाई, तो बड़े फ़िल्मी स्टाइल से वो मुझे बोले कि आपके साथ कौन आया? आई वाज़ लाइक मैं अकेली आई हूँ बिकॉज़ आप किसी को अलाउ तो करते नहीं हैं। आप बोलते हैं कि अंदर एक जना पेशेंट ही आएगा, आपके अटेंडेंट अलाउड नहीं है, तो किसी को लेकर आने का क्या फ़ायदा था? पर आपके हस्बैंड कहाँ हैं? मैंने कहा वो घर पर हैं, बच्चों को सँभाल रहे हैं और उनका ऑफ़िस है, उनकी कॉल्स चल रही हैं। क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? आई सेड आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, लेकिन आप पहले मुझे बताइए। नहीं, एक्चुअली आई वांट टू टॉक टू हिम। आई सेड आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, यू टेल मी। रीज़न बिकॉज़ आई वाज़ वेटिंग फॉर द डॉक्टर एंड आई वाज़ वेटिंग आउटसाइड और वो 10-15 मिनट के बीच में ना मैंने रिपोर्ट ओपन करके मैंने कुछ-कुछ वर्ड्स गूगल किए क्योंकि डक्टल कार्सिनोमा, मलिग्नेंसी, ये सब वर्ड्स ही मेरे लिए नए थे। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में कि क्या होता है। तो मैंने इनको गूगल किया इन वर्ड्स को। जैसे ही मैंने इनको गूगल किया उसमें कैंसर वाज़ द फर्स्ट वर्ड व्हिच केम सबसे ऑन टॉप। अब मेरे को समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ?
भैया अब क्या करें? मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, ऐसे रिपोर्ट मिल गई है, डॉक्टर का वेट कर रही हूँ। लेकिन ना मैंने रिपोर्ट में गूगल किया है तो उसमें ऐसे-ऐसे आ रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे डाँट लगा दी फ़ोन पर कि तुम गूगल मत करो, तुम्हें पता है आधे से ज़्यादा टाइम पे कई बार गूगल में चीज़ें इतनी उल्टी आती है, तुम क्यों उसको गूगल कर रही हो? तुम डॉक्टर को दिखाओ और दिखा कर के घर आओ। तो ठीक है, हो गया। अब डॉक्टर के पास जब मैं बैठी हूँ तो डॉक्टर मुझे बोलता है कि रिपोर्ट्स अच्छे नहीं हैं। आई सेड कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए। कहता है इट्स अ ट्यूमर। आई सेड ओके। अब उसको ये लग रहा था कि लड़की अकेली आई है, 34 इयर्स की ये लड़की अकेले आकर के पता नहीं किस तरह से रिएक्ट करेगी सिचुएशन को जैसे उसको पता चलेगा। पीपल आर नॉट वेरी प्रिपेयर्ड कि उनको इतना झटका लगे किसी चीज का। तो मैंने मुश्किल से कुछ सेकंड्स चुप रही और मैंने उनसे पूछा कि किस स्टेज पर हूँ मैं। तो बोले कि मैं स्टेज नहीं बता सकता अभी, लेकिन आपको आगे के टेस्ट कराने पड़ेंगे, लेकिन मुझे उसके लिए आपके हस्बैंड से बात करनी है। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करा, तो बोले कि मैंने कहा कि डॉक्टर ने बात करनी है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं डॉक्टर ने बात करनी है? मैंने कहा वो आपसे बात करना चाहते हैं, बात करो। बात करी, डॉक्टर कहता है कि मेरे को आपसे मिलना है, आप आइए। तो छोटा शहर था, ज़्यादा दूर नहीं था, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला कि मेरे अभी अपॉइंटमेंट्स हैं, आप 1 बजे मेरे पास आ जाओ। इट वाज़ ऑलरेडी 11:30। तो उस डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को बताया कि इट्स अ ट्यूमर और हमको जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ग्रोइंग, बहुत अग्रेसिव लग रहा है जिस हिसाब से है इसकी स्पीड जो ग्रोथ है। ठीक है, अब हम घर पहुंच गए वापस। अब रास्ते भर में मेरे हस्बैंड को टेंशन की ये लड़की घर तक कैसे पहुंचेगी, कैसे रिएक्ट करेगी सिचुएशन को। अभी इन सब चीजों के बीच में मेरे को मेरे घर से फोन आने शुरू हो जाते हैं, सब कुछ फोन आ रहे हैं। और मैंने पापा को फ़ोन किया क्योंकि मैं डॉक्टर के पास थी। आई वाज़ नॉट टेकिंग देयर कॉल्स। आई कॉल फर्स्ट वन हूम आई कॉल्ड वाज़ माय डैड। मैंने कहा डैडी मैं डॉक्टर के पास थी। कहते कि मेरे को जानना था कि आपकी रिपोर्ट्स का क्या रहा। तो मैंने कहा डैडी इट्स अ ट्यूमर, मोस्ट लाइकली इट्स ब्रेस्ट कैंसर और अभी आगे का पता नहीं। मेरे डैड को समझ नहीं आया कि भैया ये लड़की घर कैसे जाएगी। उनको भी सेम टेंशन जो मेरे हस्बैंड को टेंशन थी। तो मैंने कहा मैं घर पहुंच जाऊंगी। तो मुझे बोले कि नहीं आप मेरे साथ फोन पे रहो जब तक आप घर नहीं पहुंचते। मैंने कहा डैडी मैं पहुंच जाऊंगी, ज्यादा दूर नहीं हूँ, लेट मी जस्ट रीच होम एंड आई कॉल यू। मैं घर पहुंची। आप मानेंगे नहीं, तब तक मेरे को कोई वो नहीं था कि मैं किसी चीज से डरी हूँ या मैं रोई हूँ। रास्ते भर मैं आराम से आ गई, लेकिन जैसे मैं घर पहुंची मेरे सामने मेरे दोनों बच्चे आए। आई ब्रोक डाउन। आई सेड दिस कांट हैपन टू मी, दिस रियली कांट हैपन टू मी। एंड व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी ओनली? आई हैव छोटे छोटे बच्चे एंड उनको अगर मैं नहीं हुई तो उनको संभालेगा कौन? आई मीन फॉर अ मदर यही सबसे बड़ा डर होता है एक मदर के लिए कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। एंड आई थिंक इट्स अ टेंडेंसी ऑफ एवरी मदर। एनीवेज, तो वहां पर उसी दिन सेम डे हमने बायोप्सी कराई, सब कुछ कराया। बायोप्सी के लिए उन्होंने बोला कि हमें 8 दिन लगेंगे रिपोर्ट आने में, क्योंकि वहां से वो लोग गुड़गांव रिपोर्ट भेजेंगे। गुड़गांव में आएगी और गुड़गांव से रिपोर्ट बनकर फिर वापस आएगी। उन्होंने कहा 8 दिन तो लगेंगे हमें बायोप्सी की रिपोर्ट के लिए। अब उस दौरान के बीच में उन्होंने बोला कि आप पेट स्कैन भी करा लो। वहां पर मुझे पेट स्कैन कराने का अपॉइंटमेंट नहीं मिला, वहां पर था वेटिंग एंड देयर वाज ओनली वन लैब जो कि पेट सीटी स्कैन करती हो। अब आई कॉल्ड डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स इन गुड़गांव की अगर मुझे गुड़गांव में मिल जाती तो मैं गुड़गांव आके करा लेती हूँ, क्योंकि हमारा घर तो गुड़गांव में था। बट हम लोग कोविड की वजह से हम अपने होम टाउन चले गए थे, क्योंकि वहां पर सब बिग हाउस, बच्चों के लिए इजी था, खुला जगह थी, खेलना सब कुछ इजी था बच्चों के लिए। अब मैं वहां हम लोग को गुड़गांव में टाइम मिल गया फॉर वेरी नेक्स्ट डे पारस हॉस्पिटल का पेट सीटी कराने का। अब वो पेट सीटी करा तो उसमें तो आ ही गया, बट बायोप्सी की रिपोर्ट तब तक नहीं आई थी। अब हमने टेस्ट करा कर के हम लोग वापस गए, वापस जा कर के उधर के डॉक्टर्स को दिखाया। बट आई वाज मोर कंफर्टेबल कि मैं चाहती थी कि मैं गुड़गांव में कराऊं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स गुड़गांव में हैं। एटलीस्ट आपको एक सपोर्ट मिलता है, एक सपोर्ट है कि आपके बड़े, बिकॉज मेरी मदर इन लॉ नहीं है, आई लॉस्ट 2.5 years बैक। तो एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स साथ में होंगे, मुझे कुछ सपोर्ट मिलेगा कि बच्चे हैं उनको संभालना सब कुछ करना। पर ऑल ऑफ अ सडन इतने डॉक्टर्स को मिलने के बाद में ही मुझे फील होने लगा कि पता नहीं सब चीजें कैसे हैंडल होंगी, सब कुछ कैसे मैनेज होगा। बच्चे का स्कूल है, ऑनलाइन क्लासेस हैं एंड व्हाट नॉट। आई मैनेज थिंग्स ब्रेवली।
माय पेरेंट्स वर माय सपोर्ट, माय हस्बैंड वाज लाइक, कहते हैं ना जो सबसे बड़ा पिलर होता है एक, उन्होंने एक हैंड मैनेज किया कि उन्होंने कहा कि तुम बच्चों की टेंशन बिल्कुल छोड़ दो। आई वाज स्टेइंग विद माय पेरेंट्स फॉर 5 मंथ्स। जब तक मेरी कीमो चली मैं उनके घर उनके पास रही। मेरे बच्चों की मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं हुई क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल उनको संभाल के रखा। चाहे वो उसकी क्लासेस हो, चाहे वो छोटे बच्चे का खाना हो, क्या ना हो, सब कुछ मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड दोनों बच्चों को संभालते थे। और मेरे पेरेंट्स को उन्होंने बोला कि हम बच्चे संभाल लेंगे, आप इसको संभाल लो। क्योंकि आई एम सिंस बिगिनिंग आई एम अ पर्सन, आई एम एन ओवर थिंकर। तो मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ, हर चीज में बहुत ज्यादा सोचती हूँ। कहते हैं कि इसको इस सिचुएशन में आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं संभाल पाएगा। तो मैक्स हॉस्पिटल गई, मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर हरत चतुर्वेदी से मिली। उनसे पहले मैं ऑलरेडी 3 डॉक्टर्स को ऑन्कोलॉजिस्ट से मिल चुकी थी, पर मुझे कहीं से भी तसल्ली नहीं मिली थी। आफ्टर मीटिंग हिम आई वाज लाइक नाउ देयर इज नो लुकिंग बैक। इधर मेरे को फाइनल ट्रीटमेंट यहीं से कराना है और इनसे ही कराना है, क्योंकि आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल गई। आई स्टार्टेड विद मेरा मैंने 22nd को उनको दिखाया है, 25th को मेरी फर्स्ट कीमो स्टार्ट हो गई। उसी दिन उन्होंने मेरा कीमो पोर्ट डाला, उसी दिन मेरी फर्स्ट कीमो स्टार्ट करी है। एंड ऑल दिस हैपेंड इन 10 days। 12th of August को मैंने अपना डॉक्टर के पास गई थी और 25th को मेरी फर्स्ट कीमो भी स्टार्ट हो गई है, जिसमें कि इतने कम टाइम में हम ट्रीटमेंट भी शुरू कर पाए। क्योंकि मेरे हस्बैंड को था मुझे नहीं पता, मुझे जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करना है। आई डोंट वांट टू वेट, क्योंकि मुझे नहीं पता जिस सर्जन से वो हम मिले थे, जिसने मेरे टेस्ट कराए, उन्होंने मेरे हस्बैंड को क्या बोला। एंड टिल डेट आई डोंट नो कि उन्होंने क्या बोला मेरे हस्बैंड को। माय हस्बैंड वाज लाइक मुझे ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू करना है। अब सारे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, सब कुछ शुरू हो गया। अब मेरे बच्चों को आई वाज मोर स्कैर्ड व्हाट विल हैपन। कहते हैं ना कि एक फॉर अ फीमेल उसकी लुक्स मैटर करती हैं, कि मेरे बाल चले जाएंगे, क्या होगा। मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला अपना हेयर शॉर्ट कट करा लो। आई हैड लॉन्ग हेयर्स। अब मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैंने जैसे जिस दिन बाल शॉर्ट कराए, उसी दिन शाम को मैं अपनी डॉटर से मिलती हूँ और मेरी डॉटर स्टार्ट्स कराएंगे, आपने बाल क्यों कट कराए। उसने उस सिचुएशन में मुझे देखकर इतना रोई, इट टुक मी 1 hour टू कंसोल हर, कि बेटा कुछ नहीं है, मम्मा ने शॉर्ट कराए हैं, आपके जैसे हेयर कट करा लिया मम्मा ने। पर उसको वो चीज ना, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मम्मा ने इतना शॉर्ट हेयर कट क्यों करा लिया। अब मेरे को उससे ज्यादा प्रॉब्लम थी कि जब मेरे बिल्कुल ही हेयर नहीं रहेंगे, हाउ विल आई फेस हर, व्हाट विल बी हर रिएक्शन टू इट। बिकॉज वो भी, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी वो सेंसिटिव है, बट ओवर इन लास्ट 2 years शी इज बिकम रियली स्ट्रांग। उसको पता है कि मेरी मम्मा क्या कर रही हैं, क्या नहीं हो रहा, उनकी तबीयत कैसी है, कैसी नहीं है। मैंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। ट्रीटमेंट सेकेंड कीमो के बाद माय हेयर स्टार्टेड फॉलिंग एंड इट दे वर फॉलिंग इन लंप। आई मीन आई एम श्योर यू नो अबाउट इट हाउ दे फॉल। हाथ ऐसे डाला, हाथ से बाल ऐसे गिर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हुआ। तो 2-3 दिन तक तो जो फॉल होता रहा ठीक है। उसके बाद आई फेल्ट डैडी आई कांट टेक इट, आप मेरा हेड शेव कर दो। डैडी वाज लाइक, मम्मा सेड नो आई कांट डू दैट। आई टोल्ड माय डैड, डैडी आप मेरा हेड शेव कर दो। डैडी बोले कि नहीं बेटा, नहीं। मैंने कहा आपको करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे नहीं अच्छा लग रहा। बिकॉज चाहे वो खाना हो या मैं अपने छोटा बेटा मेरे पास है, मैं उसको खाना खिला रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, तो वो जो गिर रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रियली आई एम फीलिंग रियली अनहाइजीनिक। I got my head shaved. I started covering it with the cap. The day my daughter saw it, she was numb. उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसने कुछ नहीं बोला कि क्या हुआ। ऐसे बेटा मम्मा को मेडिसिन चल रही है ना, तो उस वजह से मम्मा के हेयर फॉल हो गए। अब उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी कि कोई मम्मा को इस तरह से ना देखे। अगर उसकी ऑनलाइन क्लास हो रही होती थी और मैं कभी अगर उसके पास होती थी, तो वो कैमरे के आगे मुझे नहीं आने देती थी, क्योंकि शी वाज स्कैर्ड, शी वाज कॉन्शियस अबाउट माय लुक्स, दैट मेरी मम्मा को कोई ना देखे इस तरह से। तो वो मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था टाइम, वो टाइम निकालना। मैं वो 4 महीने, उसके बाद दिसंबर में नवंबर में मेरा कीमो खत्म हुआ। और कीमो के इन बिटवीन अराउंड 6 कीमो मेरी हो गई थी और मेरी बॉडी वाज लाइक आई कांट टेक इट एनी मोर। आई स्टार्टेड विद माई सिवियर स्टमक पेन, क्रैम्प्स एंड वॉट नॉट। सो
8 कीमो होनी थी, 8 के लिए 6 के बाद ही मेरी इतनी हालत खराब हो गई, डॉक्टर ने कहा कि हम इसकी डोज कट डाउन करेंगे, विल कट इट डिवाइड इन 2, जिससे कि 8 है तो शायद 10 हो जाएंगी, हमको हाफ हाफ करके देना पड़ेगा। I met one of again a cancer patient. She was a year younger to me. Trust me, after meeting her, मेरे कहते हैं ना कि मेरा एक माइंडसेट था बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज। आफ्टर मीटिंग हर वो इतनी बिंदास होकर मुझसे मिलने आई, कहती कि बिल्कुल ये मत करना कि तुम अपना ट्रीटमेंट कट शॉर्ट करिए, बोल जो होना है बॉडी को एक बार होना है, एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट करो, मूव ऑन करो। उसने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना मोटिवेट किया। उसने कहा देखो, बॉडी को तुम्हारी झेलना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी क्यों ना हो। जो उसका मोटिवेट करने का तरीका था ना, मतलब टिल डेट उसके वो वर्ड्स और वो मीटिंग मेरी आंखों के सामने आते हैं कि किस तरह से उसने मुझे समझाया कि तुम्हें करना है, और किसी के लिए नहीं। तो मैंने सिर्फ ये चीज सीखी थी कि मेरे को अपने बच्चों के लिए करना है, एंड आई विल बी फाइटिंग अहेड। आई हैव टू विन दिस बैटल फॉर माई किड्स एंड ओनली फॉर माई किड्स। फैमिली है अपनी जगह, बट बच्चे सबसे पहले हैं, बच्चों को संभालना बहुत जरूरी। मेरा ट्रीटमेंट हो गया, 8 की जगह 9 कीमो हुई, ट्रीटमेंट खत्म। उसके बाद उन्होंने बोला पेट स्कैन दोबारा होगा। दोबारा जो पेट स्कैन हुआ, ट्यूमर ऑलमोस्ट क्लियर था, बट नोड्स में अभी भी बाकी रह गया था। सो आई मेट डॉक्टर हरित, वेंट टू सी हिम, दिखाने रिपोर्ट्स, तो बोले कि ठीक है सर्जरी करते हैं, क्योंकि 4 हफ्ते हो गए थे कीमो के। सर्जरी के लिए मैंने उनसे पूछा कि हम लंपेक्टमी करेंगे या मास्टेक्टमी करेंगे, तो उन्होंने मुझे डे वन यही बोला था कि यू आर यंग एंड आई विल ट्राई टू कंजर्व, बट ये सब चीजें लास्ट में उसी सिचुएशन पर होती हैं। उस टाइम पर तब तक जब उन्होंने एग्जामिन किया तो पता चला कि मेरी स्किन वाज आल्सो अफेक्टेड, स्किन के ऊपर भी रेड डिम्पलिंग वाज देयर। हम लोग, मेरे को आज के अब जाकर ये लगता है कि हम लोग अपने आप को कितना इग्नोर करते हैं। हम फीमेल्स अपने आप को इग्नोर करते हैं, कह के कि हाँ अभी हमारी तबीयत चाहे ठीक नहीं है, हमें फिर भी सारे काम करने हैं, हम अपने आप को प्रायोरिटी पे नहीं रखते। हमें सबसे जरूरी है अपने आप को, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना, जो कि इन इंडिया ये चीज बहुत कम है। चलाते रहेंगे, धक्का लगा के करते रहेंगे, अपने आप को बैक सीट पर रखकर। एनीवेज, मेरी सर्जरी हुई, आई हैड माई मैस्टेक्टमी एंड फॉलोड विद रेडिएशंस, 25 साइकिल्स ऑफ रेडिएशंस, और उसके बाद मेरी 17 साइकिल्स ऑफ हर्सेप्टिन मेरा ट्रीटमेंट हुआ, जो कि अक्टूबर में मेरा फिनिश हुआ, अक्टूबर 21। स्टिल आई फील, कहते हैं कि ट्रीटमेंट तो जैसे हुआ सो हुआ, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद नाउ आई फील रिकवरी फेज इज मोर टफर देन ट्रीटमेंट। यू हैव सो मेनी आफ्टर इफेक्ट्स। आपको ऐसा लगता है कि 4 दिन मेरे ठीक चलते हैं, 5वां दिन मैं फिर से बीमार पड़ जाती हूँ। 10 दिन ठीक चले, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम कोपिंग अप विद इट। अब मेरा ठीक चल रहा है, 10 दिन हो गए मैं बिल्कुल ठीक चल रही हूँ, 11वें दिन मैं फिर से सुबह उठ नहीं सकती। तो ये सब चीजों से कई बार मन बहुत खराब हो जाता है। आई फील रियली डिमोटिवेटेड, बट देन आई रेड a statement somebody wrote on the one of on our Facebook page. It's okay, we, सबसे पहली चीज यही है कि हमको एक्सेप्ट करना है। अगर जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया, अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, अपनी तबीयत को एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन से आपके लिए देयर इज नो लुकिंग बैक। आप अगर एक्सेप्ट करके आगे चल लेंगे अपनी तबीयत को, ठीक है, यू नीड टू टेक वन स्टेप एट टाइम। आज अगर 10 मिनट काम किया, ठीक है, छोड़ दो, अगले दिन फिर 10 मिनट कर लिया, नहीं भी किया तो भी कोई बात नहीं। अब मेरे लिए आज की डेट में सिर्फ ये है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ जो करती हूँ। आई एम ऑन मेडिकेशन, आई एम ऑन सप्लीमेंट्स, बट आई सप्लीमेंट्स के साथ आई एम ऑन पेन किलर्स। आई एम टेकिंग न्यूरो मेडिसिन बिकॉज आई एम अ माइग्रेन पेशेंट फॉर लास्ट 20 years, और कीमो के बाद से मेरा माइग्रेन मुझे बहुत ज्यादा ट्रिगर करता है। मेरे को बच्चों को पढ़ाना पड़ जाए तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क मिल गया मुझे, कि मुझे उसको बैठकर पढ़ाना पड़ रहा है। एंड मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, एंड मेरे हस्बैंड मानते हैं कि इस चीज को, कि मैं जहां पर थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस ले लूं मेरे को माइग्रेन ट्रिगर कर जाता है, मेरी पैल्पेशन बहुत हाई हो जाती है। तो ही इज लाइक टेक इट स्लो, इट्स ओके, अगर तुम नहीं कर पा रही हो मत करो, छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, मैं देख लूंगा। तो इसी तरह से अब कहते हैं ना, एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन वो जो रिकवरी फेस है ना, वो अभी आपको एक्सेप्ट कर नहीं पा रही है।
that's about me, about my journey. आप बताएं, आपसे any questions, any if you have any sort of questions. Why are you taking painkillers? I am taking painkillers because my I have so much of neuro pains as in मेरे बॉडी में इतने पेन्स होते हैं by evening, at times by afternoon, I feel that I can't even stand. My feet are swollen. मेरी लेग्स में स्वेलिंग आ जाती है, मेरे पैर अकड़ जाते हैं कि मैं खड़ी भी नहीं हो सकती हूँ. I take Ultraset and then I move on. That's how I spend my day. Did your doctor suggested this Ultraset? Yes. At times, if there's too much of pain, I take Ultraset. No. Actually, Ultraset is a bit problematic Okay. because I think you have read the composition of Ultraset Uh-huh. It has tramadol. and One more. I'm forgetting the name. Tramadol and one more medicine. it is an opioid. Okay. It can So, cause addiction. okay. But I do take that. No, the thing is that आपने आपके मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को ये बात बताई कि आपको पेन या सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को बताया उन्होंने अल्ट्रासेट बोल दिया? मैंने अपने सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को बताया था और अभी बल्कि मैंने आई मेंटेन अ डायरी वेयर आई कीप राइटिंग व्हाट ऑल मेडिसिन आई एम टेकिंग ऑन स्पेसिफिक डे. आज मैंने अगर माइग्रेन के लिए मेडिसिन ली है तो मैं उस दिन हाईलाइट करती हूँ अपने न्यूरो को बताने के लिए. सो आई हैव माय क्वार्टरली फॉलो अप नेक्स्ट वीक. सो आई एम प्लानिंग टू टॉक टू देम अबाउट दिस दैट दिस इज द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग. The first thing, whatever problem you are facing, except for the surgical area, consult your medical oncologist. ये सर्जिकल oncologist क्या होते हैं? इन्हें ड्रग्स के बारे में ज्यादा नहीं, ये फोकस्ड इनका पेन किलर पे रहता है. ओके. चाहे वो हरीश चतुर्वेदी हो या जितना बड़ा सर्जिकल oncologist हो, हाँ हाँ. इनका फोकस होता है पेन मैनेजमेंट के ऊपर. आपको ओके. अल्ट्रासेट अगर आप 1 साल तक लेते रहेंगे तो आपको एडिक्शन डेवलप हो जाएगा. एंड यू नो ओके. Michael Jackson died because of these opiates. ओके. Yes, after some time you will develop hypergelesia. That means कि ओके. आपको कोई पेन किलर काम नहीं करेगा बॉडी पे. आप ज्यादा से ज्यादा आप बोलेंगे कि पावरफुल चाहिए. ये ओपिएट्स का प्रॉब्लम है. मेरे को नींद आपके नहीं आती है. बहुत मुश्किल से जाकर मेरे को अब नींद आनी शुरू हुई है. अल्ट्रासेट अफीम है. अफीम खाएंगे तो नींद तो आएगा. नहीं आता मुझे नींद ही नहीं आती है. तो एंड आपका पिछले कुछ टाइम तक तो मैंने कंटिन्यूअसली आई वाज ऑन लोनाज़ेप एंड एल्ट्रिक्स. एट टाइम्स देखिए लोनाज़ेप एंड एट टाइम्स एल्ट्रिक्स हमने एज एक पर माय स्टडी न्यूरो. किया था. आई वाज पार्ट ऑफ ए स्टडी. उसमें देखा ओके. गया था जो जितना पेन किलर या नींद की दवाइयां खाते हैं दैट मेक्स देम मोर प्रोन टू ब्रेस्ट कैंसर. ओके. तो आपको इसलिए आपको बेटर है आपका जो बॉडी का पेन है आप ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है. हम्म. पैक्लिटैक्सेल के बाद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है. आपका शायद एड्रियामाइसिन साइक्लोफोसामाइड और पैक्लिटैक्सेल ये कीमो था ना. न्यूरोलॉजी होगा आपका. लेकिन ओके. आपको इसका ऑल्टरनेटिव न्यूरोलॉजी के लिए आपको पेन किलर से नहीं काम देगा. मैं आपको और उसके यस आपको उसके लिए न्यूरोपैथी. दिस इज द पेन. दिस इज द न्यूरोपैथिक पेन. इट इज राइट. नॉट द मस्कुलर पेन. तो आपको अल्ट्रासाउंड काम नहीं देगा बट आफ्टर सम टाइम यू विल डेवलप एडिक्शन. Here राइट. also, I want to add something, Priyanka. When I was in treatment, I had a tumor on my vocal cord, तो मेरा भी chemo and radiation हुआ था. So I was given oxycodone. Yes, Oxycodone, that is ओके. another opioid. yeah. So That yeah, is the because exact medicine Michael Jackson was taking. Amit, I'm in the US, so oxycodone he prescribed to me. मैंने एक बार पहली बार लिया तो मुझे ना like constipation हो गया. So I didn't know it was ओके. opioid. So I didn't take it. I said I'll manage my I'll manage my pain. लेकिन मुझे ना वो constipation से ज़्यादा तकलीफ होती है. तो एक बार राइट. वो डॉक्टर बोला यार ये ना you have to have this because it will manage your pain. Why if you have a painkiller why you're not taking it? Why you're being in pain?
तो मैंने लिया वो. Exactly the same thing my doctor told me. Correct. Why are you bearing the pain? हाँ. Take a painkiller. Right, right. But listen, so when I took the first one, मुझे ऐसा लगा ये तो जाना पहचाना है, क्योंकि मैं भी भांग भांग खा, को इंडिया में था तो भांग की गोली वगैरह खाता था. मतलब ये तो अच्छा है, दिस इज नाइस. तो फिर मैंने गूगल गूगल किया, सब रिसर्च, मतलब अच्छा ये तो ओपियोइड है. फिर आई स्टार्टेड टेकिंग इट रेगुलरली. मज़ा आने लगा. एक तो ट्रीटमेंट के टाइम में वैसे भी पड़े रहो तो. एंड देन I mailed him. We had that app, my chart app था जिसमें we could communicate with the doctor and his office. So I told him that I'm out of the pain medication. I need more. He said, come to my office. Well, see, I cannot give you more. I know why you're asking for more. You're liking it, but और यहाँ पे इतना restriction है कि if you're carrying that oxycodone, uh, you won't get it without a prescription, first thing. And second thing, यहाँ पे पुलिस में भी बताना पड़ता है, लोकल पुलिस को, कि मेरे पास ऑक्सीकोडिन है, कितना है, Okay. और सब वो, they have to have those records. If you are caught with that and if it's not recorded, I can land in trouble. मतलब वो इतना dangerous है. Okay. Opioid. It's so it makes you like पकड़ लेता है आपको. तो yeah, what Amit is saying is right. It's even in the US standard they are very. ऑक्सीकोडिन Yes. अगर बोला तो वो लोग मेडिकल वाले भी ऐसे पीछे हट जाते कि श्योर 2 बार प्रिस्क्रिप्शन चेक करेंगे टू मेक श्योर, बिकॉज दे माइट लैंड इन ट्रबल इफ दे गिव इट टू समवन हु शुड नॉट हैव इट. सो या सो May I add something? या प्लीज. I have seen that if you take tamoxifen of different brand, then pain also comes. You have to find out the root cause as to why the pain comes. Sometimes, in my case, the different brand play an important role. Like now in tamoxifen, we have to take. In Mamofen, it used to give me a lot of backache and everything, all different kinds of pain. But when I Yes. change the brand to Cytotam, it's like zero pain. So then I realized the company or what I really don't understand, but the company also plays an important role. Like you have to try. That is another factor. Whenever buying any medicine, please look into the coating above the medicine. Okay. That plays a very important role. कुछ मेडिसिन है जो इंस्टेंट रिलीज मेडिसिन होते हैं, कुछ मेडिसिन से सस्टेन्ड रिलीज होते हैं, कुछ मेडिसिन से डिलेड रिलीज होते हैं. हम्म. इसीलिए इसीलिए बहुत, ये डॉक्टर कोई किसी को बताता नहीं है. हाँ जी. जैसे तो इसी से होता है. जैसे आपका केस में डॉक्टर ने कोई वर्ड बोला है प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन बोला था मेरे को. प्रोलैक्टिन का मैंने उसका टेस्ट भी कराया था अभी, बिकॉज आई फेल्ट, आई मीन आई हैड mastectomy in one side, my other side started, I felt a discharge twice. नहीं, वो आपका जो है, आपका अगर डॉक्टर ने मास्कोटोमी किया तो दूसरे साइड में भी साइज रिडक्शन करना चाहिए, क्योंकि आप यंग है तो कंधे का दर्द होगा तो बैक का होगा, पैर का होगा. ये कोई डॉक्टर नहीं बताते. डॉक्टर की पेन हुआ, पेन किलर खा लो, लेकिन जी. आपको यू हैव टू फाइंड आउट एन ऑल्टरनेटिव. आप जाइए केरला आयुर्वेदिक मसाज कीजिए, कॉग्निटिव थेरापी कीजिए, स्ट्रेस बूस्टिंग टेक्निक्स कीजिए. आपका देखिए पेन कम हो जाएगा. न्यूरोपैथिक पेन के लिए आप कुछ न्यूरोपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं. कुछ नहीं, सिंपली विटामिन B12 का टेस्ट कीजिए, देखिए कितना है. वो विटामिन नॉर्मल है. बी, ठीक है, तो आपको विटामिन B12 और लेना चाहिए, क्योंकि हाँ. आपका नर्व्स जो है इन्फ्लेम्ड हो गया है कीमो से. और राइट. स्ट्रेस पड़ते ही हमारा, अभी साइंस में क्या, हमारा जो नर्व्स होता है ना, एक डोर टाइप का है, एक्सॉन उसको बोलते हैं, उसके अंदर से जाते हैं, और वो एक्सॉन के चारों तरफ जो है वो सबसे ज्यादा इन्फ्लेमेशन होते हैं, तो सिग्नल वहीं पे ही चेंज हो जाता है. तो चीजें इसीलिए आपको कॉग्निटिव थेरापी करेंगे. हमने एक स्टडी किया था मायो क्लिनिक में, उसमें पाया Okay. गया कि 97% पीपल कंप्लेनिंग ऑफ बैक पेन, उनका कोई इंजुरी नहीं है, सिर्फ नेगेटिव थॉट से. और Okay. कैंसर में आई हैव सीन 99% कैंसर पेशेंट्स कंप्लेनिंग ऑफ बैक पेन. Because of stress. सिर्फ, यस, ओनली स्ट्रेस. And आप स्ट्रेस, yeah, Amit ji, sorry, continue, please. नहीं, यू कैन टेल.
Yeah, वो you were talking about the sleeping problem. So मुझे भी ना because of the tinnitus, the ringing, just नींद नहीं आती है. So recently I met with a yoga teacher. I'm a Mm-hmm. Rotary member. Yes. So Anu Anand, she's in our group also. And then I told her about I take sleeping pills, and she got mad at me. She said, "एक हफ्ता मेरी बात सुनना." And she regularly 1 week she made me do breathing exercise. She taught me Okay. before sleeping. Believe me, Priyanka ji, I have stopped sleeping. I don't need them. I fall asleep in 10 minutes. I don't wake up. Okay. Yeah, even if I wake up in the night, I can sleep again. And that was a big pain in just 1 week of yoga. And Wow. fortunately, Anu Anand has also volunteered to do yoga session for our group. So Okay. I will talk to her. But this is what I have experienced. मतलब वो breathing वो only 15 minutes before you sleep breathing exercise किया ना तो बहुत फर्क पड़ता है एक हफ्ते में you can I I'll will not definitely try that. yeah I will not believe anything unless I have evidence. I'm that kind of guy. So मैं पहले दो ये चीज महीना पहले तक तो मेरी सिचुएशन बहुत खराब थी। मैं हाँ रात भर सो नहीं पाती थी, सुबह उठ नहीं पा रात भर सोए नहीं, सुबह से होता था हालत कि आप कुछ कर नहीं सकते। आप बच्चे खुद संभालना है, आपको घर देखना है, आप कुछ नहीं कर सकते। आई वाज लाइक व्हाट टू डू। देन आफ्टर मीटिंग द ऑन्को सर्जन ही सेड आप कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कोई एडिक्शन नहीं होगा, थोड़े टाइम मेडिसिन लो। नहीं नहीं, और हियर थोड़ा हियर टाइम हियर मेडिसिन लेकर के बाद नाउ आई एम इन अ सिचुएशन कि हाँ, मेरे को आधा एक घंटा लगता है पर आई एम एबल टू स्लीप एट No, no, लीस्ट। that is the issue. सर्जन्स हाँ उनका काम क्या है? उनका काम सिर्फ सर्जरी है। एंड हाँ आप देखेंगे यूएसए में यूजुअली सर्जन्स ड्रग्स मतलब कोई मेडिसिन सजेस्ट नहीं करते एक्सेप्ट दोज रिक्वायर्ड फॉर पेन किलिंग। हम्म यूएस no के but हमारे यहाँ पे भी बहुत अच्छे सर्जन है, वो बोलते नहीं है कि आपको पेन हुआ, वो बोलेंगे नहीं, आप हार्ट प्रॉब्लम हुआ कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाओ, पेन हुआ न्यूरोपैथी का दिखाओ। ऐसे ये चीजें हैं क्योंकि सर्जन का स्पेशलाइजेशन एरिया ये नहीं है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन यहाँ पर गुड़गांव में आफ्टर टॉकिंग टू सो मेनी डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स ने तो ये तक किया, मेरे को एक डॉक्टर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, आई फेल्ट आई एम बीइंग ट्रीटेड लाइक अ फुटबॉल। यहाँ से किक किया उधर, वहां से किक किया उधर, नहीं अब वो इसको चीज दिखाओ। मैं साइकियाट्रिस्ट तक पहुंच गई थी, मुझे Hi नहीं Priyanka, साइकियाट्रिस्ट तक पहुंचा can दिया। I come in here and talk to you यस for a minute? Hi, this is यस। Rupa. यस हाय रूपा जी। Priyanka, sorry, I'm getting my treatment done, my lymphedema, so I won't. Anyway, I just wanted to ask you कि आप आई Max एम से सॉरी करा टू रहे हैं? इंटरप्ट, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट रूपा जी, वी हैव ऑलरेडी स्पोकन इफ यू रिमेम्बर। I know आई एम द that. सेम I प्रियंका। know. I know. And Priyanka, I just want to ask you, where are you getting treatment right now in Gurgaon with the Max people or with whom? मैक्स। I'm a bit surprised because I have not faced this situation. I also had sleepless nights and I dealt with it. I do yoga, I do breathing. I think that is what kept me going. I'm a spiritual student, and so you understand that you're not the body. Okay, wo cheezein chalo chhod do. But I was never advised any of these drugs. I had a lot of neuropathy. Abhi bhi hai. And my oncologist says you have to deal with it. Like he's a bit blunt. But I was never advised. In fact, I'm very happy to hear Amit speak Ultraset. तो वो कभी SOS तौर पर देते हैं. You know, मैं तो I एसओएस मेरा ऑलमोस्ट हफ्ते में 3 से 4 बार होता है। no, Priyanka, you have to. I don't know who your. I don't want to say it openly now, but maybe I'll talk to you later. या You can visit the oncologist that I'm going to. ओके। And in fact, he's left Max. And yesterday आई I नो। met Harit Chaturvedi also at a different अच्छा। function. And हाँ। I still continue with my oncologist. He's gone to Fortis. And they are very, he says, नहीं ये medicines बंद करो सारे, मतलब मेरे को तो vitamins भी बंद करा दिया अभी तो, मैं चुपके चुपके ले लेती हूँ कि नहीं ठीक है लेना तो पड़ेगा. हाँ। but But avoid I'll talk vitamin to you. E, avoid vitamin E for at least 5 years. Okay. So, but you have to look into this. If you're not happy with the oncologist, तो आप देखो. You speak. I'll speak to you separate. I don't want to be on this open forum, na, and like talk about doctors and all. आई But नो आई I'm नो। quite happy with this person that I go to, and I'm very clear. मतलब मैं उनसे joke करती हूँ, सारी चीजें पूछती हूँ. ये नहीं कि जो कुछ वो बोले मैं हाँ करके. And
I don't know. Maybe you have the option of changing your oncologist, as Amit I also am doing that. suggested. I am doing that this time. Yes, Now, please do now that. you should go to a medical oncologist. Please Yes. avoid the surgical oncologist because Harish Chaturvedi, I know him very well. I stay near his hospital, Vaishali. Okay. एंड उनका एक टेंडेंसी है, वो दूसरे डॉक्टर को रेफर कभी नहीं करते। वो सब बोलते हैं कि आप उनको बोल देंगे तो हाँ ये है जाएगा, ये ठीक है, ये मेडिसिन खा लो, ये उनका टेंडेंसी है क्योंकि जितने बड़े डॉक्टर हैं वो दूसरे डॉक्टर को रेफर नहीं करेंगे। But इज ए गुड सर्जन। Priyanka यस, should be under the care of a cancer oncologist, not a surgical oncologist. oncologists are actually four types nowadays: surgical oncologist, medical oncologist, radiation oncologist, and psycho oncologist. So everyone is oncologist now. No, but Harit has never given that advice to me. I mean, I'm very surprised. Priyanka, I mean, like, you have to go to a medical oncologist. Am I right? Yeah, yes, Yes, That yes. is needed. Because My Dr. Harit only did my surgery. No, Harit No, also did my Hmm. surgery. Surgery is Hmm. totally Surgeon. different. Huh. Priyanka, In surgery. fact, I don't want to name, but my medical oncologist has never, attended my calls or anything. So I spoke to Dr. Harit this time. I said, I want to change my medical oncologist. I will not, I'm sorry, I'm talking this so bluntly, but I will not be, I want to change my medical oncologist. He said, okay, go ahead. You are only talking bluntly. I often fight with doctors everywhere. मेरा तो डॉक्टरों के साथ 36 का आंकड़ा। No, I'll refer जरूरत you ही the ना पड़े। person. I'll refer you the person that I've been going to. In fact, some Okay. of my friends also, they dropped their oncologist, and I said, go and meet him. He's a younger chap. He sees what you want. He sees what your family wants. If there is any resistance from the family on a certain way, he is like मैंने बोला मुझे natural चीजें चाहिए, तो कहता है कि क्या, what do you mean natural चीजें चाहिए? I said नहीं, मैं वेदांत की student हूँ. He said आप खोलो आपका ये जो डॉसीटैक्सिल वगैरह है, दिस इज फ्रॉम द यू ट्री. He told my daughter sitting there, open Google, open where is the U tree. मैंने उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा नोट भी लिखा हुआ है. And I Who is like your him. doctor? Who is He your is actually doctor? Dr. Nitesh Rohatgi. Nitesh Rotgi. That is Max. Yes, yes. No, he's Now left. he's not with Max now. He's left He's now. left. He's gone to Oh. Fortis. Fortis. Yes, he is very young, very gregarious and talkative. That is No, he's a very open chap and he knows his things. He's also does, he's also involved internationally. जो बाकी वाले होंगे, maybe they are younger, they are all growing, they are evolving. But I'm quite happy with him. Yes. So Priyanka, you have to manage the pain without painkiller, especially Ultracet. Tramadol is not good for your liver, and Ultracet is not good for your receptors, brain receptors. Hmm. तो आपको स्ट्रेस का कुछ करना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे एक्टिविटी लेवल बढ़ाना पड़ेगा, आपको पेन मैनेज, आपका ऑल्टरनेटिव थेरापीज, इसमें आप ऑल्टरनेटिव थेरापीज पे जाइए, हम इस पे आपको रोकेंगे नहीं। Yeah, Right, I'll do right. one thing. I'll also talk to the yoga teacher and see if they Yoga. can conduct a session. And then, if you feel so, what she does is according to the problems we have, she tailor makes those yogas. Uh, for me, she did ask me what are the problems, how do I feel, and then she gives some exercises to do, and then she will ask the benefit if you're feeling benefited or not. So matlab, she is very good. I will talk to her and see if we can conduct a session, and then if you feel better you can reach out to her and we can figure out some way. Yeah. But I'll tell you, I didn't believe this Priyanka yoga and those exercises they make. I also had, my wife also had a back pain, but in a week, because of what she said, she's she's feeling very much relaxed. So it does I make did a yoga for 1 month. I started yoga. I yeah. did for 1 month and I felt भैया मेरा तो माइग्रेन ट्रिगर 3 times उसका डबल हो गया, 3 times बढ़ गया. मैंने कहा मैं नहीं कर सकती अभी. आई फील ठीक है Yeah, अभी छोड़ दो, yoga थोड़ा में टाइम problem ब्रेक दे देते हैं. correct. Yoga में problem ये होता है कि it आप takes time. You have to be patient. And now she's also helping me with my tinnitus. उसने भी कुछ कुछ yoga poses ऐसे दिए, vibration हाँ हाँ, kind of thing. So वाइब्रेशंस. yeah, so I'm just staying fingers crossed कि वो ठीक हो जाए मेरा ये. तो yeah, but
we will get her. I'll rope her in for all of us. Please, Yeah, that will be really great. yeah. But now you focus on reducing the painkiller. आपके पैरों में दर्द है तो आप एक काम कीजिए, कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी तेल लीजिए। एक पोटली जानते हैं, पोटली? Mm-hmm. पोटली एक बनाइए, उसमें 2 चम्मच सेंधा नमक डालिए, 2 चम्मच Okay. 1 चम्मच हल्दी डालिए, 1 चम्मच अजवाइन डालिए और उस Okay. एंटी इन्फ्लेमेटरी तेल को गर्म करके अपने बॉडी पे मसाज कीजिए। आपके हस्बैंड को बोलिए थोड़ा मसाज कर देंगे। Right. मैं अपने बच्चों को रात में ये बोलती हूँ कि प्लीज आकर के मेरी टांगों पर बैठ जाओ, आओ बैठो, टर्न बाय टर्न, अब तुम बैठो, अब तुम बैठो. Now you have to differentiate the source of pain, whether it is muscular or neuropathic. Yeah. No, it's more of neuropathy. And then you can take vitamin B12 and mega neuron type of things, or you can take gabapentin, yeah, I pregabalin. will be asking about this medicine this time. I've noted down gabapentin. Lot of people have told me. But I think pregabalin works well for younger breast cancer, for younger cancer survivors. Pregabalin. You can ask both pregaba or gabapentin. Both you can ask the doctor. आपके कभी उंगली ऐसे होते होते अटक जाता है? हाँ. न्यूरोपैथी। उंगली अटक जाता है, टांगों में कई बार बिल्कुल क्रैम्प आ जाता है, वो बिल्कुल स्टिफ हो जाता है, that I can't take a step forward. That is न्यूरोपैथी। आप गलत पेन किलर खा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा, आपकी माइग्रेन बढ़ेगा। माइग्रेन तो मेरा अभी भी, मैं यहाँ आकर बैठी हूँ, I have taken the migraine ISOS medicine and I have started this call. नहीं, आप पेन किलर कम कर लीजिए, योगा कीजिए, मेहुल को पोलिया आनंद से मिलवाएगा, उसको पकड़िए, आपका बहुत हेल्प करेगा, देखिएगा। नहीं, I will talk to her and I'll get her. She's very nice. She's like very helpful. मतलब उसको passionately करती है, खुद ही मैसेज करती है कि did you wake up? I'm like yeah. I will call in 10 minutes. Like teacher के जैसे she does. And yeah, so I will definitely get in touch. And it was really nice, Priyanka. The call is going to end in some time, so Yes. we would definitely. I'm sure everyone who is going to listen to this is going to benefit. Is there any questions for Priyanka from anybody who's in the group? 5 मिनट है अपने पास, अगर आपको कुछ प्रियंका से डायरेक्टली पूछना है तो Please be open. I'm okay to answer questions if there's any. Yeah. Again, all I want is to be aware. This awareness is really important. हमारे आज भी सोसाइटी में अवेयरनेस इतनी नहीं है, लोग इस चीज को लेकर के छुपाते हैं और ओपनली बात नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बाकी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फीमेल्स में। आई हैव सीन पीपल गोइंग थ्रू इट कि नहीं कुछ नहीं है, नहीं छुपाना, बताना नहीं है, करना नहीं है, अपने आप को प्रायोरिटी पे नहीं रखना है। आई थिंक प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, कीप योरसेल्फ। आई ट्राई टू स्टे पॉजिटिव, आई ट्राई टू स्टे हैप्पी एज मच एज आई कैन। आई प्ले विद माई किड्स। मेरा पूरा दिन आधे से, मतलब आप ये लगा लीजिए, मेरा पूरा दिन मेरे छोटे बेटे के साथ निकलता, एंड ही इज 3.5, so you can imagine how much running I do with him. So, but yes, prioritize is all we need to do. नहीं, आपको रनिंग जो करते हैं, whatever you are doing, please detach it from the stress. आपके स्ट्रेस बढ़ेगा, माइग्रेन बढ़ेगा। एक बहुत अच्छा चीज है, इट इज नॉट साइंटिफिकली प्रूवन, जस्ट ए सर्वे सेज कि जिनका माथे पे जितना लकीर आता है, दे आर इंक्रीजिंगली प्रोन टू माइग्रेन। ओके। तो माइग्रेन क्या होता है? दूसरा एक चीज, हम चश्मे में यूज करते हैं, प्लस माइनस पावर दोनों है, तो भी माइग्रेन को ज्यादा रिस्क रहता है, तो इसीलिए प्रोग्रेसिव लेंस यूज करना चाहिए। I went to see ophthalmologist yesterday only, and उसने मुझे कंसल्ट किया, आगे रेफर किया दूसरे डॉक्टर को। he is feeling that there is glaucoma issue in my eyes now. तो आप फिर ग्लूकोमा, दैट कुड बी ड्यू टू दिस कीमो से कुछ होता है। लेकिन उसके लिए भी आपको आता है, आंखों में आई ड्रॉप डाल सकते हैं, आई ड्रॉप्स डालना, वेन्स को पतला कर देंगे तो ग्लूकोमा नहीं होगा। हाँ, तो शुगर चेक किए थे? हाँ जी, शुगर
आई एम नॉट अभी तो नहीं किया, बट हाँ नेक्स्ट वीक, इसी वीक में सारे टेस्ट होंगे. बट माई शुगर ओके, लेवल्स आर फाइन, आई एम नॉट डायबिटिक, एवरीथिंग थ्री इज थ्री नॉर्मल. 3 मंथ वाला शुगर टेस्ट कीजिएगा, हाँ जो अभी HbA1 HbA1c, हाँ. उसका. यस, आई बी डूइंग दैट. और थायराइड भी करना चाहिए, थायराइड आई एम विटामिन डी. नहीं, आई एम टेकिंग थायराइड मेडिसिन. मेरा थायराइड रेडिएशन के बाद इतना एग्रीवेट हो चुका है कि आई एम ऑन थायरोनॉम 135 राइट नाउ. 135? Yes, my इतना भी? thyroid is not controlling. Every time meeting the doctor, वो dose एक dose और बढ़ जाती है. Started with 75 and now I am at आप 135. आपके थायराइड कितना है? It was 19 19. T4. आप थायराइड के मेडिसिन कितने बजे लेते हैं सुबह? मैं सुबह उठते ही ब्रश करते ही मैं ले लेती हूँ, उसके आधे घंटे बाद ही आई टेक ब्रेकफास्ट. ना, No. First thing. एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे का गैप रखिए, नहीं तो थायराइड मेडिसिन काम नहीं करेगा. इट्स ए ओके, हार्मोनल मेडिसिन. राइट. तो थायराइड मेडिसिन का कम से कम 1.5 घंटे तक कुछ मत लीजिए, इवन के गैस का भी मेडिसिन नहीं. ओके, और आई थायराइड वाज का गैपिंग मेडिसिन बिटवीन 1/2 an hour to 1 hour का गैप रखती थी मैं तो. 1.5 घंटे से ज्यादा रखिए. और एक चीज है, हमारे थायराइड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है रात 4 से सुबह 7 बजे के अंदर. उसके बीच अगर हम मेडिसिन लेंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा, नहीं तो TSH बढ़ेगा. ओके, TSH तो वही होता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड बढ़ाता है. राइट. तो इसीलिए गैप रहिए और उस टाइम खाली पेट रहिएगा. हाँ, नहीं तो राइट. थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम करता है. आप अल्ट्रासेट ले रहे हैं तो आपका फूड इंटेक बढ़ भी सकता है. अल्ट्राटेक जो लेते हैं वो फूड इंटेक अननोइंगली ज्यादा खाते हैं और ये थायराइड पे अफेक्ट करता And है. I'm gaining weight like anything. यस यस. वो actually ओपियड्स वो ओपियड्स पुश अप वेट. करेक्ट, वो Okay. भांग की गोली होती है जो Sir, भांग खाते हैं उसके बाद में बहुत खाना लगता है, तो इट्स द सेम थिंग. इट्स जो आई मीन I we don't know. realize our body does not even understand that how much we're eating. I have felt that. We have 2 kinds of receptors in the brain and in the stomach. These are this gut. These are called opioid receptors. Because whenever we eat some kind of opioid thing, these ये जो दोनों रिसेप्टर है वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं. हम हमारा फूड के लिए मन ज्यादा बढ़ जाता है, हम ज्यादा खाते हैं, वेट गेन करेंगे ही करेंगे. और ये थायराइड को अफेक्ट करेगा. जितना वेट बढ़ेगा मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम होगा, थायराइड ग्लैंड उतना प्रेशर होगा. Yeah, the call. I think we have just 1 minute Yeah. left. But We thank you, need to Priyanka wrap up. ji, and definitely people will reach out to you. Hope they, when they see them and see this video and have questions, to help them, to Sure, guide sure. them. Thank you for your time Definitely. And again. thank you so much, Amehul sir, Amit sir, for briefing me out about medicines. I'll definitely talk about these points further on this time with my doctor. और यार हमको सर मत बुलाओ प्लीज, हमको बड़ा मतलब अजीब लगता है. हम इतना बुढ़े नहीं है. All right. But still, lot of learn from you. Lot to learn. Thank you, thank you. We'll keep talking on it. Take Yeah. care, Priyanka. Thank you. Have a nice Yeah. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye bye. Thank you so much for Priyanka, seeing get well soon. Bye, the story. Yeah, Thank you, Anjali. Thank you. I hope Bye. you'll be fine.